کبھی میرے معزز ویورز نے غور کیا ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے؟ یعنی 1947 میں آزاد ہونے کے بعد 1971 میں ملک ٹوٹ گیا اور پھر جو باقی بچا اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ IMF سے، ورلڈ بینک سے، مختلف اداروں سے قرض لے لیا جاتا ہے، وہ بانٹ لیا جاتا ہے اور پھر عوام کو کہتے ہیں کہ اب اتاریں۔ میں آج چھوٹا سا ایک پورشن آپ کے سامنے رکھوں گا ایک بک سے کہ آیا ہم راتوں رات یہاں تک پہنچے ہیں یا ہم بہت پہلے سے اس کا شکار ہو چکے تھے، اور ہمیں کیسے کیسے نمونے ملے یا کیسے کیسے حکمران ملے، وہ پھر آپ نے خود ڈاٹ کنیکٹنگ کر لینی ہے۔ میرے سامنے پھر کتاب ہے پارلیمانی مجرے، یہ آپ دیکھ لیں، پارلیمانی مجرے، اور اس سے لکھا ہے ڈاکٹر اختر نواز خان نے۔ نہ کوئی یہ الزامات ہیں نہ یہ بے پر کی ہے، یہ کتاب آپ خرید سکتے ہیں۔ میں آپ کو پیج بھی بتا دیتا ہوں، پیج ہے اس کا، یعنی جہاں سے میں آپ کو اقتباس سنا رہا ہوں اس کا پیج ہے 149۔ ٹھیک ہے جی، 149 اس کا جو ہے وہ پیج ہے۔ معروف صحافی منیر احمد جنرل یحییٰ خان شراب، عورت اور ٹوٹتا بنتا پاکستان کے عنوان سے لکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیراگراف پہ آتے ہیں۔ جنرل یحییٰ خان شراب پیتے تھے، مگر وہ بھٹو اور شیخ مجیب الرحمن دونوں کو کبھی کبھار ساتھ بٹھا کر بھی پی لیا کرتے تھے۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو معلوم تھا کہ یحییٰ کے شوق کس قسم کے ہیں، اس لیے وہ لاڑکانہ میں یحییٰ خان کو شکار کھلوانے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوازمات سے بھی ان کی سیوا کیا کرتا تھا۔ کنجر پن، سپلائر یعنی دلال۔ یہ ذکر اس دور کا ہے جب شراب کھلے عام فروخت ہوتی تھی، قبہ خانے کھلے عام چلتے تھے، ہوٹلوں میں گانے بجانے اور جسم فروشی کا کاروبار کھلے عام ہوتا تھا۔ یہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور یہ درست ہے کہ اسلام ان تمام برائیوں کی ممانعت کرتا ہے، مگر شراب فروخت کرنے اور خریدنے والوں کو ممکن ہے رشوت لینے کے لیے تو پکڑ لیا جاتا ہو، مگر انہیں اس لیے بہت ہی کم پکڑا جاتا تھا کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس طرح عیاشی 1960 کی دہائی میں ہمارے کلچر کا حصہ بن چکی تھی۔ 1960 اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حکمران طبقہ غیر محسوس انداز میں پاکستان کو سیکس فری سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے اسلامی قوانین اس لیے نافذ نہیں کیے تھے کہ ان پر راتوں رات اسلام کی رحمتیں نازل ہو گئی تھیں، بلکہ ایسا انہوں نے محض اقتدار بچانے اور مولوی حضرات کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ بھٹو مرحوم نے شراب پر تو پابندی لگا دی، لیکن شراب کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی کابینہ کے اکثر ارکان شراب پیتے تھے، اور صرف سیاستدانوں پر ہی کیا موقوف بڑی تعداد میں سول اور ملٹری بیوروکریسی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی یہی شغل فرماتے تھے۔ لیکن ان تمام افراد کی مے نوشی کے قصے اس لیے زبان زدعام نہ ہوئے کہ انہیں پینے کا سلیقہ آتا تھا، سوائے چند ایک نوجوان حضرات کے، جن میں غلام مصطفیٰ کھر بھی شامل تھے۔ جب غلام مصطفیٰ کھر گورنر بنے تو وہ شراب پی کر لاہور میں گورنر ہاؤس کے کمروں اور وسیع و عریض سبزہ زار میں غول غپاڑہ مچایا کرتے تھے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر، اور وہ حسین و جمیل خواتین کے ساتھ کس طرح تفریحی لمحات گزارتے تھے، وہ اپنی جگہ ایک حقیقت اور تاریخ کا حصہ ہے۔ اسی طرح سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق شراب نوشی کے حوالے سے بدنام اس لیے ہو گئے کہ وہ سب کے سامنے پیتے تھے اور کہتے تھے کہ میں شرابی ہوں، منافق نہیں، ہاں میں پیتا ہوں اور ڈٹ کر پیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ
यही कुछ हाल जनरल याह्या खान का भी था, जो पीते थे और डट कर पीते थे। वो शराब पीते नहीं थे बल्कि शराब में नहाते थे, और उनकी यही हरकत न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि उनके खानदान के लिए भी रुसवाई का सबब बनी। इस बात पे आप गौर करना है, एक मर्तबा मौसूफ ने गैर मुल्की दौरे के दौरान इस कदर शराब पी ली कि ईवान सदर के अमले को जहाज 2 घंटे तक महज इसलिए फिजा में रखना पड़ा कि सदर मोहतरम का नशा उतर जाए। मुलाहिजा फरमाया कि हमने किन को भुगता है और किन को हम भुगत रहे हैं। हादसा कोई रातों रात होता है कि रातों रात जो है ना वो मुल्क यहां पहुंच गए, ये IMF के पैसे हैं ना। देख लें कि इतनी शराब सदर ने पी ली कि जहाज 2 घंटे फिजा में उड़ता रहा कि सदर का नशा उतरे तो जहाज को नीचे उतारें। तो मैंने कहा आपसे जरा ये नौजवानों से खास कर, क्योंकि ये असल मुताला पाकिस्तान है, ये बातें आपको वहां नहीं मिलेंगी, तो हमने किन नमूनों को भुगता इंशाल्लाह और भी आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो की अगली तरफ चलते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बहुत ही अजीबोगरीब और खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि एक अरब मुल्क के सरबरा या शहजादे ने राहिल शरीफ को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उस वक्त $60 करोड़ का जहाज तोहफे में देना चाहा। जब यह बात उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को पता चली तो मियां नवाज शरीफ ने सख्ती से इस बात से मना कर दिया कि आपने जहाज गिफ्ट में नहीं लेना। फिर क्या हुआ, क्या होना था, जनरल राहिल शरीफ ने हर किसी को बायपास करते हुए जहाज ले लिया $60 करोड़ का। जब यह बात वजीर आजम को पता चली तो वजीर आजम बहुत गुस्सा हुए, और यहां से सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि कमर जावेद बाजवा बाद की बात है। यहां से जो असल रिफ्ट थी, जो असल झगड़ा था, वो सबसे पहले राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान शुरू हुआ। अब वो जहाज कहां है? ये जो तोशा खाना करते रहते हैं ना, वो जहाज किसके पास है? ये सुहेल वड़ाइच ने भी आगे सवाल छोड़ा है कि वो जहाज कहां गया, वो जहाज किसके जेर इस्तेमाल है? आया वो जहाज जनरल राहिल शरीफ के पास है या कहीं और चला गया? इसका कोई नहीं पता। तो ये पहले डॉट कनेक्टिंग करें। एक आपको बात बताई 70 की दहाई की, यानी भुट्टो साहब, याह्या खान, गुलाम मुस्तफा। फिर आपको बात बताई, ये मेरा ख्याल है 14 था या 15 होगा, आपको पता होगा कि राहिल शरीफ और नवाज शरीफ $60 करोड़ का जहाज वजीर आजम कह रहा है नहीं लेना। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हर किसी को बायपास करके वो जहाज ले लिया, और बकौल सुहेल वड़ाइच के उस जहाज का कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गया। हादसे रातों रात नहीं होते, हादसों को पलने में बड़ा वक्त लगता है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो समाजी हो, ये वैसे नहीं बनी। ये बिल्कुल वैसे नहीं बनी कि आप कहें कि रातों रात बन गई है। आप ऐसे ऐसे जो है वो अरकान पार्लियामेंट के किस्से पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, जो बसों पे इजलास में शिरकत करने आते थे और जिनको पैसे का कोई लेना देना नहीं था पैसे के साथ। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, वो आपके सामने है सारी की सारी सूरत हाल। अगली स्टोरी पे चलते हैं। झंग में एक नून लीगी उम्मीदवार के साथ सड़क इंसाफ हुआ है। वो वीडियो तो मैंने नहीं लगाई, ना लगा सकता हूं, क्योंकि मौसूफ की बहुत ज्यादा धुलाई हुई है, पाइपों से, डंडों से और टांगों से, लातों से। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती या तशद्दुद की हमायत नहीं की जा सकती। आप बिल्कुल उनको आईना दिखाएं। मैं तकरीबन हर वीलॉग में कहता हूं कि उनको आईना दिखाएं। उन्होंने 16 महीने आपके लिए क्या किया। एक कल ऑनरेबल व्यूअर ने जो है वो नीचे कमेंट में लिखा है कि आप गरीबों की बात नहीं करते, तो मेरा दिमाग खराब है, मैं ये रोज किस लिए करता हूं? यानी ये वीलॉग्स का क्या मतलब है कि निजाम बेहतर हो।
गरीब को कब इंसाफ मिलेगा, गरीब को कब जो है वो बुनियादी हुकूक मिलेंगे, मुसावात मिलेगी? जब मुल्क आइन पे चलेगा। मेरे हर वीलॉग के नीचे क्या लिखा हुआ है, आप चेक कर लें कि रूल ऑफ लॉ। यहां पे रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर होगा कि अगर ये तो बनु मखजूम की फातिमा है, अगर बनी हाशिम की और मेरी बेटी फातिमा होती तो उसकी भी सजा यही होती। गरीब को तो कुछ अगर मिलता है तो वो रूल ऑफ लॉ में मिलता है। अमेरिका में जितने बड़े आदमी हैं ना, आज मैं व्यूअर्स को दावत देता हूं, जितने बड़े आदमी हैं उनकी आप स्वाने देख लें, यानी उनकी आप जो है ना बायोग्राफी चेक कर लें। उनमें से आधे आपको बाहर के लोग मिलेंगे, गैर मुल्की मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका जौहर शनास है, जौहरी है, वो पहचान लेता है कि इस बंदे में कितना करंट है। एंड्रयू ग्रूव हो, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, कोई भी ये जो बाहर के, आइंस्टाइन हो, वो फूले फले कहां पे? अमेरिका में। उन पे रंग कहां पे चढ़ा? अमेरिका में। अमेरिका पहचान लेता है। क्यों? रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ से मुराद ये है कि गरीबों की बात करते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो ताकि गरीबों को कुछ मिले, गरीबों को इंसाफ मिले, गरीबों को रोजगार मिले और गरीबों को बाइज्जत रोजी मिले। तो और ये वीलॉग करने का मकसद क्या है? कि मुल्क का निजाम बेहतर हो, मुल्क को जो चलाने वाले हैं वो साफ सुथरे लोग हों। वो साफ सुथरे लोग होंगे तो मुल्क साफ सुथरे अंदाज में चलेगा। मुल्क अगर इनके हाथ में होगा, ब्रोकर्स के हाथ में, दलालों के हाथ में, इन हड हरामों के हाथ में, इन हराम खोरों के हाथ में, वो आजकल का सारा सियासी कचरा वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के दफ्तर से बरामद हो रहा है। उन्होंने सियासी जमात बनाई है या किसी काबली दोस्त की तरह उसका काट कबाड़ का काम शुरू कर दिया है, कचरे का काम शुरू कर दिया उन्होंने कि वहां से हर कोई बरामद हो रहा है। ओ भाई, इसका मकसद ही यही है। तो आप जंग में जिस तरह नून लीगी रहनुमा की जो है वो खातिर मदारत हुई है, उस तरह बिल्कुल न करें, लेकिन इनको आईना जरूर दिखाएं। मैंने एक वीलॉग में कहा था कि अगर इजराइल का बायकॉट करना है ना, सबसे पहले नवाज शरीफ का बायकॉट करें, जिसकी जायदादें बाहर हैं और जिससे यहूदी फायदा उठाते हैं, जिसके सरमाए से। फजल रहमान का बायकॉट करें क्योंकि इसने NW पैटरसन को कहा था कि आपने जरदारी और नवाज शरीफ को आजमाया है, मुझे आजमा कर देखें, मैं इससे ज्यादा आपकी खिदमत करूंगा। आपने बायकॉट करना है तो जरदारी का करें, जिसके स्विस अकाउंट्स भरे हुए हैं, सिरे महल, दुबई, मलिक रियाज, बिलावल हाउस, इन लोगों का बायकॉट करें। इन लोगों का बायकॉट करेंगे तो गरीब की सुनी जाएगी, गरीब का कोई पुरसान हाल होगा। वैसे अगर आप ये कहें कि आपने दूध की रखवाली पर जो बिल्ले बिठाए हुए हैं इसाक डार टाइप, तो वो कहां पे गरीबों को जो है कुछ देंगे, उनके अपने पेट भरेंगे हदीस के मफहूम के मुताबिक कि इनका पेट कब्रों की मिट्टी भरेगी। इनको पता ही नहीं है कि इनकी जायदादें कितनी हैं और गरीब की बेटी के बालों में चांदी उतर रही है। इन खंजीरों को, इन लानतियों को, इन खबीसों को, इन बेगैरतों को ये नहीं पता कि इनके कितने अकाउंट हैं, इनकी कितनी दौलत है। इनकी तो भाई ये मैं गरीब के लिए ही करता हूं, मैं खुद गरीब आदमी हूं, मैं ये गरीबों के लिए ही करता हूं। और जब हजरत उमर हुक्मरान होंगे तो चादर का सवाल होगा, जब अबू बकर सिद्दीक हुक्मरान होंगे तो मदीने के मजदूर की दिहाड़ी जितनी उनको मजदूरी मिलेगी, जब उस्मान इब्न अफान हुक्मरान होंगे तो हर तरफ सखावत होगी, कुएं खरीदे जाएंगे, जब मौला अली हुक्मरान होंगे तो हर तरफ इल्म होगा और हर तरफ तलवार से तेज इंसाफ होगा। तो तशद्दुद न करें, लेकिन जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन इनके हाथ में है, अंगूठा आपके पास है। इनको ऐसी शिकस्त दें जिस तरह अवामी लीग ने गुस्से में आकर मुजीबुर रहमान को जितवाया था। फाइनल से पहले इंडियंस ने एक प्रोग्राम किया और उस
प्रोग्राम ने उन्होंने एक लानती 11 बनाई। उस लानती 11 में तीसरा नंबर उन्होंने रखा बाबर आजम का। हमें बाबर आजम से इख्तलाफ है, हमें बाबर आजम की कप्तानी से इख्तलाफ था, हमें बाबर आजम की जो है वो खेलने पे इतराज था, लेकिन बाबर आजम हमारा भाई है, बाबर आजम हमारी टीम का कैप्टन रहा है, बाबर आजम जो है वो स्टार बैट्समैन है। वो कौन होते हैं? मूत्र चूसने वाले जो बाबर को लानती तीसरे नंबर पे रखें। तो आज मैंने घर के शेर घर में ढेर, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने फेंटा लगाया है, कमिंस को मुबारकबाद, वार्नर को मुबारकबाद और सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड को मुबारकबाद। और ये जो लानती 11 है, इस लानती 11 में पहला लानती है जो मैंने बनाई है विराट कोहली, जो दूसरा लानती है वो है रोहित शर्मा, जो तीसरा लानती है वो है केएल राहुल, जो चौथा लानती है वो ग्राउंड में आने की वजह से नरेंद्र मोदी, जो पांचवां लानती है वो है बुमराह, जो छठा लानती है वो है सूर्य कुमार यादव। ये मैंने 11 लानती, बाकी जो आपके ज़हन में हो तो ये मैंने लानती 11 बनाई है। हर चीज फिक्स की इन्होंने। जो आईसीसी थी, जो भारत का बोर्ड था, जो पिचें थी, यकीन करें कि ये खाली बातें नहीं है, प्रोपेगेंडा नहीं है, हर चीज में 2 नंबरी की है। खाली उनके लानती जो तमाशाई 1.5 लाख लानती आए हुए थे यार, उन्होंने किसी को दाद नहीं दी कि वो दाद दे दें खूबसूरत चौके पे। मैं जहां बैठ के ट्रेविस हेड को छक्के पे चौके पे दाद देता रहा, देख क्या खेल रहा है प्रेशर में। वो 1.5 लाख लानती, वो 1,40,000 लानती जिनको सांप सूंघ जाता था एक स्कोर बनने पे, तो ये 11 लानती हैं इंडियन टीम वाले। इनका वजीर आजम लानती है, वो जो 1,40,000 तमाशाई मैच देखने आए वो लानती थे और लानती हैं। और ये 11 लानती हैं जो इन्होंने बाबर आजम को कहा और घर में घुस के ठोका है। घर में घुस के, ये बड़ा इस्तेमाल करते हैं ना, घर में घुस के ठोका है ऑस्ट्रेलिया ने। और मेरे मुर्शद ने कहा था, सदाबहार कप्तान ने कहा था, दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान ने कहा था, दुनिया के सबसे कामयाब कप्तान ने कहा था कि ऑस्ट्रेलियन नंबर 1 है। और कल ऑस्ट्रेलियन ने प्रूव कर दिया है। 11 लानतियों को घर में घुस के ठोका, उनकी बीवियों के सामने, उनकी गर्लफ्रेंडों के सामने, हत्ता कि उनके वजीर आजम के सामने। और उनके वजीर आजम को जिस तरह पैट कमिंस ने लिफ्ट नहीं करवाई, हाथ नहीं मिलाया, थूका नहीं उसके चेहरे पर, पैट कमिंस को मेरी तरफ से सलाम। और आखिरी दरखास्त कि मेरे जज्बात को साइड पे रखते हुए वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ी सी व्यूअरशिप दिया करें और अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का हस्बे मामूल बहुत बहुत शुक्रिया।